All right. So let me go to the नीचे चले जाते हैं. So if you have a reversible reaction, just note the word. It is A plus B. It's a reversible reaction, and it gives you C plus D. Then the relationship between Gibbs energy and the standard Gibbs energy of the reaction is given by this. Okay, so this is delta G is equal to delta G naught plus RT log of ln Q. Okay, I'm just saying. So let me just write it. ln Q, and Q is given by, I'm sure you don't know what is Q, but it is very simple to calculate Q. Q is calculated with the help of concentrations of C, T, and divided by concentration of A and B. And at equilibrium, we had already studied delta G is equal to 0. So this reaction is a reversible reaction, and at a certain point it reaches equilibrium. So this thing becomes 0. So 0 is equal to delta G naught plus RT ln K EQ, where this is a, ये जो लिंक कर रहे हैं हम दोनों को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको. दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड K equilibrium therefore is given by e raised to power minus delta G by RT, or K equilibrium is equal to e raised to power 10 raised to power, okay, 10 raised to power delta G upon 2.303 RT. ठीक. Okay, so let's put these relationship. So this is your Gibbs energy change, which at equilibrium is 0, and the standard Gibbs energy change. Okay, R is a universal gas constant. I have seen one question always coming from this, so which is very strange. This is the last line of the book. इसी में से सारे question Gibbs के, apart from the ones we were doing. तो अरे ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी तो हुआ था. हाँ, मतलब सिर्फ ये लास्ट लाइन होती है और इसी से क्वेश्चन आता है ना. व्हाट इज अ फन इन making us do these questions. So let's do one question on this so that we get acquainted well with the formulas which are given in this. So question is, अच्छा, क्यू इज दी कुछ कोफिशिएंट होता है तो कौन सा? क्यू. नहीं, Q is same as K equivalent. So what अच्छा you see is K is the equilibrium constant of the reaction. ठीक है. So question is, you have a reaction which is carbon monoxide gas सीओडी plus, कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन की हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की. हाँ, यस, मोलैरिटी में जैसे लिखी होती है. सो इट दिस, इसको तो इग्नोर दिस नीचे वाला. So this gives you CO2 plus H2. Delta H 300 Kelvin.
कैलकुलेट, यही क्वेश्चन होता है, कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ईच टेम्परेचर and predict the direction of reaction at 300 Kelvin and 1200 Kelvin. It is given that P सारे जो सारा pressure है during the process is given to be 1 atmosphere. स्टैंडर्ड प्रेशर है। हाँ जी, STP conditions are there. So this is at, so you're given a reaction, you have to calculate K at each temperature. So you can see the reaction K जो है वो, अगर ये वाला रिएक्शन लेते हैं, ये वाला, ये, तो इसमें e raised to power delta G by RT. So T की you're changing the T. Okay, so it is e raised to power minus delta G by RT. That's your K equivalent. Okay, so first of all, you will have to find delta G, then you know the temperature, you know your. So first step, find delta G at one temperature, then find delta G at the second temperature. Use delta H minus T delta S 2 times so that you can find two delta G's at 300 Kelvin and 1200 Kelvin. And substitute the values and then finish it off. आगे समझ में क्या है? जी लिंकिंग, अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है छोड़ दो. ठीक है। So calculate delta G for both the situations, delta H minus T delta S. Calculate two delta G's, calculate two K equivalents, answer, at two different temperatures. For this, the only significant thing you need to do is, you should be able to see the, जैसे ये वाला reaction दिख रहा है, जी you will find delta G, you know R, you will then get log of ln K equivalent equal to some number. Solve करने पे delta G इधर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा, log of K equivalent आ जाएगा, कोई वैल्यू आ जाएगी, then you have to go to the log table and be able to decipher that code. So that means you need to know log table to be able to solve. Log table मिलता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है। Log of Kp पहले वहां कर लो, फिर let me tell you how to see the log table. ठीक है। सॉल्व कर लो फटाफट, वैल्यूज डाल लो बस, दैट्स इट. 300 में निकाल लो पहले डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू कितना है 300 पे, माइनस 41.16 माइनस T कितना दिया हुआ है 300. 300 पहला 300 ले लेते हैं और आगे डेल्टा S कितना दिया है 300 पे, डेल्टा ये ऐसे नहीं। हीरा. अच्छा अच्छा हाँ 4.24 इंटू 10 -2. So इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट -28.44 किलो जूल्स. एक आ गया डेल्टा G. लेट्स पुट इन दिस फॉर्मूला नाउ. इसमें ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएगा ना डेल्टा G, अभी नेगेटिव आ रहा है तो उस साइड जाएगा. सो 0 हाँ इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस R ln Kp. डेल्टा G हो जाएगा माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू R ln Kp. ठीक। ये हो गया 28.44 डिवाइडेड बाय R कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, R ओके नहीं दिया तो R की वैल्यू भी ऑलरेडी नो 8.314 जो भी है डालो, और ये आ गया आपका 28.44 इज इक्वल टू 8.31 इंटू लॉग ऑफ Kp. सो ln Kp जस्ट डिवाइड करना है इसको, 28.44 डिवाइडेड बाय 8.31 कितना आएगा 3.5 3.4. केपी इज प्रोडक्ट्स के लिए। No, you just need to find the equilibrium constant.
अच्छा, केसी होता वो? क्यू लिखते हैं और एक लिखते हैं के सी भी होता है। के केसी इक्वेशन होता है? होता है, मतलब के इक्विलिब्रियम, के अच्छा, इट इक्विलिब्रियम और क्यू। और भी कुछ मतलब होता होगा, कहीं लिखा होगा, चलना दो। नहीं, केसी होता है ना, क्या कहते हैं, सी अपॉन डी, सी डी अपॉन ए बी। के इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम तो उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या होता है? सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? व्हाट डज सी स्टैंड फॉर? कांस्टेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हमें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है, हो सकता है सेम ही चीज हो। मतलब मे बी दे आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं कैल्सी से। एक मिनट, कैलकुलेटर का है यार। 28.44 ये तो बेस डिवाइडेड 10 के बाय साथ कर रहा है ना? 8.31 है ना, हाँ, 14। ठीक है, सो दिस इज 3.4207। सो ठीक है। लॉग ऑफ केपी इज इक्वल टू, कितना बोला मैंने? 3.4207 ना। हाँ जी। नाउ वी हैव टू गो टू द लॉग टेबल। ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू सी द लॉग टेबल फर्स्ट। एंटी लॉग टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। एंटी लॉग। Log of number is given, so you have to find the anti-log of a law. अच्छा, I will just paste the anti-log table. Log लेने आता है पहले? नहीं नहीं आता ना। वो भी नहीं आता ना, ओके। Let me tell you the first two things. ठीक है। See, first of all, how do you find log of 3, for example? Okay. So, log of some number, positive number has to be found out. Okay. There are two parts to this. When you go to the log table, generally log बहुत बड़े नंबर का निकाला जाता है, छोटे मोटे के लिए log नहीं यूज होता, बट ठीक है ये पट्टू सिंह है anyway. So there are two parts. One is a characteristic part, log of a number. Okay, the whole part of the number is called the characteristic part, and the characteristic of any number greater than 1 is positive, and if it is 1 less than the number of digits, and if it is 1 less to the left of the in the given number, if the number is less than 1, the characteristic is negative and is 1 more than the number of zeros to the right of the decimal point. Then the second thing a log has is called as mantissa. I will just show you the characteristic. What is the meaning? So just remember two keywords in your mind. एक होता है mantissa. This is mantissa. ठीक है। Okay, let me show you an example of how to use this. So let me just first copy huh, this is the log table. Okay, I'm just copying a log table so that, so it has two parts to it, characteristic and a mantissa. So दोनों पढ़ लेंगे. We will take a number and we will try to solve it. ये देखो कैसा दिखता है log table. So this is the way a log table appears. ओके। Do you see some numbers 10, 11, 12, and then some numbers here, here, and here? And there is something called as a mean difference. ठीक ऐसा दिखता है log of some number looks like this, log of x. Okay, now let me show you how to calculate the log, however. So let's say you have to find the log of ये कैसे खुल गया भाई? Okay, so let's find the log of a number, and I'm giving you the number as
781.54। इसका लॉग निकालना है। एंटी लॉग नहीं कर रहे अभी हम। अभी हम सिर्फ पहले लॉग निकालना सीख रहे हैं कि किसी भी चीज का लॉग कैसे निकालते हैं। ओके, सो यू हैव रेड इट। नाउ वी विल गो टू द रूल्स एंड सी। ओके, so first thing you will do, how many digits are there? So there are mm, 5 digits यार। सेवन हाँ एटी जी। वन पॉइंट फाइव फोर मतलब ये तो कोई रॉकेट Yes. साइंस नहीं है ना, सिंपल है। हाँ ओके, हाँ। फर्स्ट 2 digits आर कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। So just mark it as characteristic. Encircle it and say, okay, my number is 7. First two। अच्छा 7 8। जी, ये आपने कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ऊपर देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, द होल नंबर पार्ट। ओके, सो ठीक है। 7 8 को इनसर्कल कर दिया। So the characteristic is 2. So first step, there are 2 digits, first two. So the characteristics are 2। जो डिजिट के क्या था, ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा था। What is the characteristic part of a log? The whole part of a number is called the characteristic part of And characteristic। it is one less than the number of digits to the left of the decimal point। तो इस ठीक है। नंबर में कितने डिजिट थे लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट? 3। 3। एक कम। हम्म। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट मेरा आ गया 2 टू द लेफ्ट। अब पढ़ो जाके। ओके, लेट्स गो टू द Now go to the log table and see 78 in the first column। इसमें ये 50 तक दिख रहा है ये। हाँ। 50 ऐसे नीचे ना 78 दिया होगा। ठीक है। ठीक है, गो टू 78 एंड ओके, एंड देन व्हाट यू डू, 78 के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। हाँ। थर्ड थर्ड नंबर। हम्म। तो इसमें जो जा रहे होगे, मान लो यहाँ जहाँ कहीं 78 भी लिखा आएगा लॉग टेबल में नीचे। ठीक है। और फिर यहाँ जाओ, ये 1 दिख रहा है, ये वाला थर्ड नंबर। हम्म। ये नोट करो, 78 के आगे 1 जो है उसको देखो, 1। ठीक है। ओके, कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है 78 और 1 की, वो नोट कर लो। 78 का यहीं पे होगा, मान लो 78 इज हेयर। हम्म। और ये इंटरसेक्शन हो गई यहाँ पे इसकी, ठीक है। 1 सिक्स नाइन और नाइन 78 की। 6998। तुमने खोला हुआ टेबल कोई? नहीं, ये 50 है बाय द वे। चलिए उसको। 78 तक तो है ही नहीं ना ये। चलो, हम इसको वो कुछ और बना लेते हैं। 48 बना लेते हैं, ठीक है। ठीक 48 है। के आगे ये टकरा रहा है कहाँ पे? 6 6 8। हाँ जी। मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। 481.58। तो नजर आ गया 6821 इंटरसेक्शन का पॉइंट। हाँ जी। 48 से हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया। 48 के आगे 1 लिखा हुआ है, ये 1। तो इधर जाओ और ये टॉप रो में जो 1 था वो लिया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका। ऊपर जाओगे तो 1 है। ये रहा ठीक 1। है। ये रहा 1। ठीक है। तो अब हमने क्या ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमने निकाला है, इसको क्या बोलेंगे हम? अच्छा, यू ऑल्सो हैव डिजिट 5। 5 डिजिट्स का है ना? हाँ हाँ। तो गो टू द लास्ट डिजिट। ठीक है। लोकेट द डिजिट जो इनका 54 में 5 दिया हुआ है, हम्म, उसको जाके देखो वो कहाँ पे आ रहा है सबसे पहले। ये रहा 5 तो। कहाँ? मीन डिफरेंस में भाई, मीन डिफरेंस में। अच्छा ये का है। काम खत्म हो गया, वो थर्ड डिजिट ले लिया। हाँ, मीन डिफरेंस में। हाँ, इधर जाओ। मीन डिफरेंस में गए। हम्म। ओके, एड दिस टू द मेंटिसा, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट था हम्म। मेंटिसा का। उसमें ऐड कर दूं।
जो हाँ मेन जी। डिफरेंस आ रहा है। हाँ, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पे 5 के हाँ आगे जो क्या आ रहा है? 4। 5 ही आ रहा है, 4 आ रहा है 4 ना, आ रहा है। तो ऐड कर दो उसको। 5 के नीचे 4 ऐड करना है। ठीक है, अब 4 का क्या करना है? रुको 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 लास्ट। रुको। हाँ। सही में पूरा लॉक टेबल खोल दो एक मिनट। हाँ, वही लग रहा है मुझे, ये थोड़ा आधा रह गया है। हमने मीन डिफरेंस भी निकाल लिया, मीन डिफरेंस को ऐड कर दिया। दैट इज योर आंसर। ठीक है, बस मेन डिफरेंस का लास्ट इसका कुछ नहीं करना। हाँ जी। इस वाले डिजिट का कुछ नहीं करना, लास्ट वाले का नहीं, 4। अच्छा ये तो उसका हो गया, चलो इसे 5 डिजिट्स का, खाली ये सीधा भी कर 78 का, सकते हो। 78 का। हाँ, सीधा 78 में जाओ और जीरो में देखो क्या नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और वो उसका क्या होगा? 78 के आगे आंसर, वही लॉग है उसका, लॉग ऑफ तो 78 पॉइंट में ही होता है, ये कब नहीं होता वैल्यू? है। तो ये पॉइंट्स में होते हैं क्या, 0 0 0 4 0 4 1 4? हाँ हाँ, लॉग ऑफ अ नंबर ना। हाँ हाँ। यस। ये नेचुरल लॉग है या फिर बेस के साथ है? नेचुरल, वो आपने कौन सा लॉग टेबल चुना उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पर ये नेचुरल लॉग है, ये 0 पॉइंट होता है क्या, कहते हैं 0.414 या 0.792? कौन से वाले, जरा टच करना, कहाँ पे बोल रहे हो? ये फंक्शन इज नेचुरल लॉग फंक्शन से आया है सारा वैल्यू। ये हाँ, ये लिखा है ना, ये सारी ये वैल्यूज यार जितनी भी खाली हैं। जीरो, अगर लॉग 11 है तो ये हाँ, 0 1 4 1 ये रहा 4 है। 11, लॉग ऑफ 11। नहीं, सो 0 1 4 0 4 1 नहीं नहीं, 4 है। लॉग, सॉरी 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 सॉरी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। लॉग 11 में बेसिकली यू सेइंग 11.0, राइट? हम्म, तो इसके डिजिट के एक साइड लेफ्ट पे एक ही डिजिट है ना सिर्फ, तो कैरेक्टरिस्टिक इज ओनली 1। अच्छा तो 1 है, तो 40453। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इज 1 भाई। हाँ तो फिर 053। नहीं, फिर 1 के आगे 1 भी तो लिखा ही है। तो 1 और 1 की इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है देख लो। पर ये तो 10 से जीरो। स्टार्ट हो रहा है ना, 1 तो है ही नहीं। तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू 10 फर्स्ट। 1 तो है ही नहीं ना इसके अंदर। हम्म, अजीब सी चीज है क्या अजीब सी चीज है भाई? लॉग टेबल। 1 मिनट, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कोई अजीब अजीब नहीं है। पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, कुछ नहीं करना। ठीक है, फाइंड द लॉग ऑफ, let me paste a table and then let's redo this just in case you're still not clear कि how do you find characteristic. Okay, मैं log 10 वाला ले रहा हूँ जो सिंपल वाला होता है। log table to the base 10 देखो। पेस्ट करना। हाँ, कर रहा हूँ। So I hope we get a lengthier one because log table to the base 10। हाँ, ये लेंदी मिल गया मुझे। कॉपी इमेज कर रहा हूँ मैं। लेट मी रीडू इट सो दैट इट इज क्लियर। तो वो सिलेक्शन इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग टेबल ढूंढना पड़ेगा। ये टेबल दिख रहा है क्लियरली? हाँ जी। ठीक है। सो आई एम गिविंग यू अ नंबर, फर्स्ट डू दैट एंड देन लेट्स सी व्हाट आर द बैलेंस डाउट्स यू हैव। ओके, सो द नंबर इज 31.62। कुछ नहीं करना, सिर्फ सेल ढूंढना है। 31.62, इसका ठीक लॉग निकालो जी। लॉग और बेस टू द 10 है क्योंकि टेबल भी हमने यही लिया है।
ठीक है, कैरेक्टर। पहले टेबल में जाओ एक बार। लॉग। अच्छा, इसमें 31 ही नहीं है। यार क्या यार। क्या लॉग है ये? कोई लॉग टेबल मिल जाएगा ढंग का एक भी। सर कुछ वही ले लो ना जो उसमें दे एक रखे हैं लॉग आपने। टेबल की ना बुकलेट आती है। एक मिनट में। अच्छा। देयर मे बी अ लॉग टेबल एट द बैक ऑफ द बुक। लॉग टेबल की पीडीएफ फाइल होगी तो बड़े आराम से हो जाएगा ये। हाँ है मेरे पास। 10 का दे लॉग रखा, टेबल 31 नहीं का मिल रहा है। है। सर 31 का जो है, हाँ जी, बताओ। अ, एक मिनट, हाँ लॉग बेस 10 का ही है, ठीक है। बताओ। एक मिनट, लॉग टेबल का पीडीएफ ढूंढ लेते हैं यार, इतना इसका टाइम। 31 का निकालना है ना। जी। एक फोर मिनट में लॉग नाइन टेबल पीडीएफ देख रहा हूँ यार। टेबल मिल गया मुझे, मैं आई यूज द टेबल। ठीक है, मुझे टेबल मिल गया। ठीक है। आई एम ओपनिंग इट। ठीक है। लॉग ऑफ 31 में जाओ। गया लॉग ऑफ 31 में। ठीक हूँ है। मैं लॉग 31 में। हाँ। तो व्हाट डू यू सी इन 2 डेसिमल के बाद क्या नजर आता है? 6। 6। क्या नंबर है वो? 31 का 6। 31 का 6। 6। 31 का 6 देखो। ऊपर है 6, वो जो लॉग के ऊपर लिखा हुआ है, सिक्स पाँच वन टू हजार 5011। 31 का 6, 5 लिख लो, 5011। नहीं नहीं, 4997। ठीक है। 4997, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी में जाओ। प्रोपोर्शनैलिटी। 2 में। 2 है ना लास्ट डिजिट। हाँ तो 2 है। प्रोपोर्शनैलिटी में 2 में जाओ और इसी लाइन में आगे टकराओ जाके, 2 से नीचे आते हुए। 4942। यार मीन डिफरेंस में जाना है। अच्छा मीन डिफरेंस में, अच्छा अच्छा। लास्ट डिजिट, ये क्वेश्चन वाज ना, लास्ट डिजिट का क्या करें। हाँ। 3। हाँ, लिख लो। ये तो जो अभी निकाला है मेंटीसा, वो 4900 क्या निकाला है, 4997। हाँ, उसमें 3 ऐड करो। अच्छा 3 प्लस ऐड 3। करूँ। हाँ। 5000। 5000 आ गया, ठीक है। ओके, ये तो मेंटीसा आ गया, यू फाउंड द मेंटीसा। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2। 2। तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1। तो नहीं। कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1। हाँ, 2 डिजिट है ना, एक डिजिट कम होता है कैरेक्टरिस्टिक भाई। रीड अच्छा द है। डेफिनेशन क्लियरली, ये पढ़ो। इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी नंबर, and if it is and if it is one less than the number of digits to the left of the, if नहीं है and it is one less than the number of digits to the left of the decimal point। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे 2 डिजिट हैं, 31। हम्म। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। ठीक है। तो आंसर लॉग ऑफ दिस नंबर इज 1.5। ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। अच्छा इसके आगे पॉइंट लगा देना बहुत। और ये आपका आ गया मेंटीसा। सो कैरेक्टरिस्टिक इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिजिट्स वन लेस देन द डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। और हम्म। जो मेंटीसा वाला पार्ट आता है, वो आता है इंटरसेक्शन से। मीन डिफरेंस की इंटरसेक्शन से और टॉप रो की इंटरसेक्शन से। ये तो ठीक है, 31.62 था। आ और गया। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लेना है 6969 अब का। एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लेट्स गो स्टेप बाय। नाउ टू योर क्वेश्चन ऑफ लॉग ऑफ 12। लेट्स डू लॉग ऑफ 15। पहले बता, लॉग ऑफ ओके। 15 में, होल्ड ऑन, लॉग ऑफ 15 में कितने हम्म। कैरेक्टरिस्टिक होगा? 2। कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल के लेफ्ट पे कितने पॉइंट्स हैं? डेसिमल के लेफ्ट में 2 ही तो है, दो फिफ्टीन ही हैं, तो पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक 1 हुआ ना, ए 1 लेस। हाँ 1 लेस, ठीक है। 1 हुआ ना फिर। हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक 2 थोड़ी ना हुआ, 1 हुआ। 1 हुआ।
ठीक है। अब आपको निकालना है मेंटिसा। मंटीसा। हाँ, मेंटिसा भी तो निकालोगे ना। मंटीसा होगा 5 है ना ये तो। हाँ, लास्ट एक मिनट डिजिट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो गो टू और द एक लॉग टेबल अगेन। हाँ। गो टू 15। हाँ जी। व्हाट डू यू सी इन फ्रंट ऑफ 15? 15 बहुत कुछ, 1761 179। 1761। हाँ 15.0 है ना, तो हम 15 के आगे जीरो को देखो। ठीक है। वो ऊपर वाला जीरो, वो जो ऊपर है, 0 1 2 3 9 में, हम्म 15 का हम्म, जीरो। ठीक है। 1761। 17। 61। ठीक है, आंसर। 1.1761। जी। बहुत अच्छा। कर लिया। अच्छा। नाउ डू वन क्वेश्चन। होमवर्क। होमवर्क नहीं, अभी करके दिखाओ। सो दैट लॉग टेबल इज वेरी क्लियर इन योर माइंड, अदरवाइज यू गेट अ जीरो। 15। और लॉ टेबल ही नहीं दे रखा मैं दे रहा हूँ एग्जाम। ना, लिंक दे रहा हूँ मैं, आई एम गिविंग यू लिंक। ओके, होल्ड ऑन। सो लॉग टेबल इज नॉट अवेलेबल, गुड। लेट मी जस्ट ब्रिंग द, मैं व्हाई आई हैव नॉट कॉपीड इट हियर, आई एम जस्ट वंडरिंग। ये पीडीएफ आ रही है इसी के अंदर, so that we are seeing the same thing, and again we are not confused between log tables ki which one are you seeing. Log, log, लॉ anti-log. विद बेस 10 है। It is a base 10, yes. रुको, आया देखो। एबीसी की वो खोल Just रखा है। confirm whether you got it. कौन सा? हाँ, खोल के देखना जरा, you are able to see, flip it, the log table. भेजा अपना टीजी पे भेजा है। Yes, नहीं नहीं, अच्छा। बोर्ड में आ गया है, व्हाइट बोर्ड में आ अच्छा गया है। बोर्ड में भेजा है, अच्छा अच्छा। ठीक है। You can flip it also नीचे से। If you जैसे। click on it, you can go to page number 1 2 3 4। हाँ हाँ वो तो हो रहा है। ठीक है ना। Now find the log of 15.27. Question is, please find the log of प्लीज, अच्छा। प्लीज। 15.27. 15 I'll just be back. 15.27। हाँ जी, I'll just be back. I'll just get a glass of water for myself. Just give me 1 second. ठीक है। So two digits, characteristic one. You do हम्म। this, okay? Let you do this.
हाँ जी, सॉरी, बैक। हाँ जी, क्या हाँ आंसर जी, है आपका? 1.1832। 1 18 पे स्ट्राइक हो रहा था, उसके हम्म। आगे व्हाट हैव यू एडेड? उसके बाद मैंने मीन डिफरेंस ऑफ 7 ऐड करा। 20 आ रहा है। हम्म। एक मिनट मैं भी चेक कर लूँ जरा। हमें देखना 50 है 50 का मीन 15 के डिफरेंस। आगे देखना है ना, 15 के 7 में देखना है। हाँ 7, 15 अच्छा में 20 आ रहा है, ठीक है, 7 गलत 20 है देख लिया। भाई। हाँ गलत देख लिया था मैंने। 20 जुड़ेगा। 28। 38। 28। हाँ 20, हाँ 38। हाँ 38 होना चाहिए 38 है, 38। आंसर। ओनली अ लॉग टेबल। Okay. Now let's say they ask you to calculate. Let me ask you. Log of 10, हम्म, 150.27. How will you solve this? अच्छा ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2। Wait. So when यार you solve log questions, there are certain tricks also. Write it as 10 into 15.27. अच्छा So log of 10, 10. ठीक है। Log of A into B, अच्छा ये 10 10 है तो 10 10 का 1. 1। अच्छा बहुत बढ़िया। इसका निकाल ही लिया। ये भी ठीक है। सही है? बढ़िया। This is the way log tables are done. Next part. अब अभी हमें लॉग दे दिया, अभी मैं एंटी लॉग निकालना है ना, डायलॉग। रिवर्स। सो गो टू द सेम टेबल। हाँ मैं लॉग एंटी लॉग। लॉगरिथम्स में। हाँ, गो देखो, एंटी लॉग दिखेगा तुम्हें? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है? सो लेट्स सी द 10 मेथड रेस्ट ऑफ पावर एक्स दे रखा है। किसमें? एंटी लॉग का कुछ तो दे रखा है, 10 रेस्ट पावर एक्स मॉडर्न एबीसी। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो 10 रेस्ट पावर एक्स उस दे रखा है, ऊपर हाँ लिखा हुआ ठीक है। है। हाँ, तो यू नो द बेस राइट। हम्म। अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द एंटी लॉग, तुम्हें पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बेस। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 5, हाउ विल यू फाइंड इट? अ, Which means I am saying log of some number is 5 to the हम्म, base 10. Find the find the value of x. This is what I mean. कैसे निकालेंगे, आई डोंट। कैसे? Simple. If it is log of x to the base a is equal to b, then x is equal to a raised to power b. Similarly, here x will be equal to 10 raised to power 5. 10 रेस्ट पावर 5, ओके। If you take log of both the sides now, if you take log of both the sides, it will be log of x is equal to 5 log 10. ठीक है सर, Log अगर of मैं x is हाँ। ये मेरा log बेस 10 हम्म, x इज इक्वल्स टू 2.838। चलेगा। डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दिया ना, हाँ फुल नंबर की जगह। 2 पॉइंट, नहीं एक मिनट, इट वुड बी 10 रेज टू पावर व्हाट? 2.838। नो नो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। हम्म। हम्म। ये तो आपने जो मेरे को लिख के दिया है, ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा है ना, ये तो हम्म, उधर तो लगा लिया मैंने 5 का डायरेक्ट, यहाँ नहीं लगाना। अच्छा। दैट्स व्हाट आई मीन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है। हम्म। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, मतलब 3 डिजिट्स होंगे, हाँ है ना। अब मेंटिसा से देखो, हाउ डू वी यूज मेंटिसा? सो लेट्स से यू गो टू द नंबर, the anti-log is to be calculated, and say the number is, let me give you a number. Okay, you've already taken some number. हम्म। अच्छा ठीक है, वही ले लेते हैं फिर। तो go to Mantisa is, your Mantisa is how much? 8380. हम्म।
ठीक है, सो योर मेंटिसा इज नोन टू अस। अभी मेंटिसा को हमने रिवर्स कैलकुलेशन से एंटी लॉग टेबल में जाके देखना है कि कहाँ पे आ रहा है 8380। ओके, लेट्स गो टू द एंटी लॉग टेबल। जाना सर एंटी लॉग टेबल में। हो गया। 0.63, नहीं योर्स इज 0.83, आई एम सॉरी, 0.83 का 0.83 के 8 में जाना है हमें। हाँ 0.3 का 8 आ रहा है मेरे ख्याल से 6887। 887 पॉइंट। अच्छा, मैंने तो मतलब 0.99 तक ही दे रखा है ऐसे भी। हाँ, तो 0.63 तो होगा ना। हम तो अभी सिर्फ मेंटिसा को ही देख रहे हैं। 63 या 0.83, सॉरी 83? 83। हाँ 0.83 का देखो, 8। हाँ, पॉइंट 0.838 पे। भाई अगर मैं 64 का देखता हूँ, हाँ नहीं, पॉइंट एट सिक्स थ्री का 8 पे देखो, हाँ ठीक है। सिक्स 6887। एक मिनट, मैं भी वही देख रहा हूँ जो पॉइंट सिक्स एट थ्री एट का एट 8 पे। 0.83 का 8, हाँ 6887, ठीक है, सही है। सिक्स, तो ये हमारा वो आ गया, पॉइंट से निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, वो वैल्यू देख ली। मीन डिफरेंस के टेबल में जाओ, मीन डिफरेंस के टेबल में फाइंड द करस्पॉन्डिंग मीन वैल्यू डिफरेंस। मीन डिफरेंस भी निकाल लो, कॉलम कौन सा है वो, एंटी लॉग में। मीन डिफरेंस कौन आगे सा है? क्यों ये दिया नहीं, वो आगे नंबर 8 टू। पॉइंट नंबर मेरा, एक मिनट सॉरी, लेट मी सी द नंबर, आई फॉरगॉटन द नंबर। 7.83 का 8 देख लिया ना, फिर 0 पे जाना है हमें, सॉरी। जीरो पे ना? जीरो का तो हाँ होता ही नहीं वैसे। एक मिनट, ठीक है। तो 0.83 का 8 हमने देख लिया, 6887, ठीक है। ठीक है जी। तो हमारा नंबर अगर कुछ होता तो हम वहां जाके देखते और ऐड ही कर देते। हम्म मान लो यू वुड हैव गिवन 0.8382, तो 2 में यू वुड हैव गॉन इनटू द एंटी लॉग टेबल एंड सीन की मीन वैल्यू डिफरेंस में क्या नंबर है, सीधा आगे चलते जाते और जो भी आता वो ऐड कर देते 6887 में, प्लस दैट मीन डिफरेंस वैल्यू। क्लियर? हाँ जी। या है नहीं बाई चांस? कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का होगा। ओके। पुट अ डेसिमल है, 3 डिजिट का नंबर आ गया हम्म आंसर। 688.7x। यस। अच्छा जी, हम्म, सही में? यहाँ तो भाई दो। x 150 व्हाट्स योर कैरेक्टरिस्टिक, 150.27 है। व्हाट इज योर कैरेक्टरिस्टिक 2? दैट मींस यू हैड 3 डिजिट्स। अच्छा, 688.7 आ रहा है ना x हाँ। लॉग पर। ये तो सर अगर हम लॉग विथ बेस 10 हम्म, और x हमारा 150.27 है, तब भी वैसे हमारा 2.838 है, तो 150.7 क्यों नहीं आया आंसर? कहाँ है 2.83? ये सब मैंने यहाँ इसी लिया है। ये हमने ठीक लिखा है। log of 10 is 1, log of 15.27, 2.8, नंबर ऑफ डिजिट तो 3 है यहाँ पे। ये यहाँ पे सर ये देख लो, ये भी 688.7 क्यों आ रहा है फिर? 150.27 नहीं 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 गड़बड़ लग रही है मुझे तो ये। होल्ड ऑन, 2.838, 6887, हमने 83 का 0.83 का 8 देखा, बिल्कुल सही देखा। 0.83 का 8 इज 0.83 का 8 इज 6887, सही है। और आगे कुछ है भी नहीं, 0.83 का 8 देखा, मेन डिफरेंस के लिए 0 है ही नहीं,
तो 688.7 और कैरेक्टरिस्टिक 2 है। फिर यहाँ गलती करी है क्या कोई? लॉग ऑफ 15.27 ये कैसे निकाला था हमने? ये तो लॉग ऑफ 15.27 है। लॉग ऑफ 150 नहीं, ये मैं आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मतलब प्रॉब्लम क्या है? यू मीन दिस शुड हैव बीन 150? दिस यहाँ नंबर शुड जैसे हैव बीन हमने, 150? यस अच्छा, यस, ओके, दिस शुड हैव बीन 150। 15 के आगे तो आ नहीं रहा यार ये हमने फिर लॉग्स ये लॉग ऑफ 15.27 जब करा हमने तो कैरेक्टरिस्टिक 1 कर दिया। 0.27 का हमने 0.838 कैसे लिया था? हम्म, ये हमारा 15.27 का ये कैसे आया 838? कैरेक्टरिस्टिक इज दिस। 15 का 27 लिया था हमने लॉग टेबल में। हाँ जी, एक मिनट, लेट्स गो टू द लॉग टेबल बैक। 15 का 27 तो 4314 है। नहीं, 15 का है 1761। हाँ, वो तो ठीक है, 1761 है। कैरेक्टर्स तो 1 है ना। हम्म। बड़ा अजीब सी चीज है यार लॉग, ये तो व्हाट्स सो अजीब इन दिस यार? स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत बिल्कुल। अजीब है ये। टेबल का रैशनल नहीं मालूम है इसलिए लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन तो यही होती है। ओके, डू वन थिंग, एक बार दोबारा एक बार ट्राई मारते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। लॉग ऑफ 2 पॉइंट से 6452 और उसका ना फिर एंटी लॉग भी निकाल के देखेंगे। 2.6452 इसका निकालो एंटी लॉग with the method I've told you. Go to 0.64. Let's just confirm with each other. 0.64 में चलते हैं, अभी पता चल जाएगा इसमें इसमें गलती है या हमने कहीं गलती कर दी है। 0.64, 0.64 का क्या देखना है हमको? 5। ओके, 0.64 का 5 देखो क्या आ रहा है। 444416 2.6452। का एंटी लॉग 4416 आया। 4416, बहुत बढ़िया। 64 का 5। 4416 में क्या दिक्कत हो गई भाई? 64.64 का नहीं आ रहा देखने? हम्म, पॉइंट्स और 4 लिखा हुआ है, ऊपर चार्ट बना हुआ है, ये रहा। हाँ, इसमें क्या नहीं नजर आ रहा? ये रहा चार्ट, हाँ जी। ये रहा 0.64, उसका 5 नजर नहीं आ रहा है? 4416। अच्छा, ये फोर व्हाट फोर इज फोर वन व्हाट इज सिक्स नॉट? ठीक ठीक है। है, लिख लिया। फोर फोर वन हम्म, सिक्स लिख लिया। हाँ, ठीक है, 4416 लिख लिया। आगे क्या नंबर है? मेन 4416। डिफरेंस के लिए भी तो है ना आगे। हम्म 64 कितना है? सिक्स नंबर ही हाइड फोर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर हाइड हो गया, कहीं कहाँ गया? 2। हम्म आगे बढ़ते हैं मेन डिफरेंस के लिए। मेन डिफरेंस के लिए आगे बढ़े। 2 2 एक मिनट, हाँ 2 ये आ गया। हम्म 4418 कैरेक्टरिस्टिक कितना है?
2. Characteristics how much? 2. हाँ ठीक है, तो मेंटिसा कितना होगा? 3, 3। एक ज्यादा। हाँ So the answer is 441.8. ठीक है। You can check the value of log of 441.8 in a log table. Log table में there are calculators available. You just put the value of log 441. Don't go by that 150 वाला example. उसमें कोई error कर दी हमने कहीं पे. But the method was correct. ये हमारा method सही है anti log निकालने का. ठीक। Okay. Let's now go back to the question of हम कर क्या रहे थे? We were calculating गिब्स। anti log of a equilibrium constant. तो ये this is where we reached. यहाँ पहुंचे थे हम. नाउ कैलकुलेट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. 0.42 का पहले देखना है 0, फिर 7. गो टू द एंटीलॉग टेबल एंड सी 0.42 के 0 में क्या क्या आ रहा है. 0.42 के 0 में क्या आ रहा है? ठीक है ठीक है। 0.42 के 0 में भाई आ रहा है जो मुझे दिख रहा 0.42 के है. टू 0 सिक्स में टू 6 2। सिक्स नहीं टू सॉरी सिक्स 62। थ्री जीरो है. 62 तो है ही नहीं. 0.42 का 2630। लिख लो. 2630 लिख लिया. फिर 7 में क्या आ रहा है आगे मीन वैल्यू डिफरेंस में? मीन वैल्यू डिफरेंस में 42 है ना। 74। +4 कर दो भाई साहब. हाँ ठीक है। ओके। 2634. हाँ ये कितने हैं? 3. 3। तो नंबर ऑफ एक्चुअल डिजिट्स इज 4, एक ज्यादा उल्टा. हम्म। 2634 आंसर. ठीक है। बट रिमेंबर ये टू द बेस 10 है. गलती हो गई हमसे. ये लॉग हम्म, ऑफ नेचुरल लॉग था. मल्टीप्लाई दिस बाय ये अगर कन्वर्ट करना है इसको तो ये बनेगा 2.303 log kp इज इक्वल टू 3.4207. लॉग ऑफ 10 और इसमें क्या रिलेशनशिप होता है? ये होता है 2.03 टाइम्स नेचुरल लॉग सेम नंबर का. ठीक है। अगर आप लॉग ऑफ किसी नंबर को निकाल रहे हो लॉग ऑफ एक्स विद अ नेचुरल बेस, हाँ then जी। convert it into 2.303 into ln of the back base to the 10. अच्छा। तो हमने गलती से टेबल देख लिया log 10 का. कर रहे हैं हम हम्म। नेचुरल लॉग. तो यू हैव टू बी वेरी तो ये जो केयरफुल टू विच. सिक्स थ्री फोर आया है, हाँ. क्या इसको मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना भी है तो। डिवाइड, हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस. बहुत अच्छे। देखें कितना आता है मल्टीप्लाई करके. बहुत ज्यादा आ जाएगा। कितना ही आ जाए. 2.5 गुना बढ़ गया ना. 2634 मल्टीप्लाई बाय 2.303. 6066. एक सेकेंड यार.
हाँ जी, हो गया हम्म। सॉल्व्ड। आ गया निकालने। हम्म। ओके, गुड। चलो अब क्या करना है? गिब्स ही करते हैं। एफसी क्या होता है? एफसी नहीं, गिब्स कह रहा था मैं तो। हाँ वही कर रहे हैं, गिब्स ही कर रहे हैं भाई। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिब एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक रिएक्शन दिया हुआ है PCl5, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। हम्म। PCl3 plus Cl2 gas. K is given to be 1.8 into 10 raised to power minus 7. Question is, what is delta G for the reaction? डेल्टा जी। Yes. K ठीक। is given at equilibrium to be this. This is हम्म। at equilibrium, obviously. हाँ जी। इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट दिया हुआ है, निकालना डेल्टा जी है। तो आपको वो रिलेशनशिप याद करना है, मतलब मेमोराइज डेल्टा, करना है। क्या था रिलेशनशिप? हाँ जी, डेल्टा आर जी। के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। ऐसे फॉर्मूला तो है ना, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एक ही बात है, माइनस आर टी पावर में लिखना लॉग। चाहते हो हाँ वैसे लिख लो। उसमें लॉग सीधा निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी ई होता है लॉग ई। ऑफ, ये नेचुरल लॉग है सॉरी, तो मैं लॉग ऑफ ई लिख रहा हूँ और के इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ। डेल्टा जी निकालना है तो आर मालूम है, टी हम्म। मालूम है, हम्म। और रिएक्शन का टेम्परेचर नहीं दिया था मैंने, सॉरी, 298 केल्विन है। ठीक है, निकल जाएगा ये टी तो। भी मालूम है। लॉग टेबल देखना, बिना लॉग टेबल के 0 नंबर है, आना चाहिए लॉग टेबल। अब हम्म। पहचानना है क्वेश्चन देख के कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, नहीं तो गए। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्या बोलता है भाई थर्ड लॉ? थर्ड लॉ बोलते हैं, थर्ड लॉ। द द एंट्रोपी ऑफ ऑल perfectly crystalline solids हम्म। is zero at the absolute zero temperature. हम्म। Since entropy is a measure of disorder, it can be interpreted हम्म। that at absolute zero temperature, that at absolute zero मतलब a perfectly इलास्टिक, सॉरी, crystalline क्रिस्टलाइन। solid has a perfect order of its constituent particles. अच्छा। जी आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपीज, S इज इक्वल टू 2.03, ये log टू द बेस 10 है, ठीक where है। Cp is the heat capacity of the substance at constant pressure and is supposed to remain constant from 0 to T and is
supposed to remain constant in the range of 0 to t. Okay. Okay. What are the limitations of the law? पहले तो law एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं. The entropy, basically the entropy of all perfect crystalline solid is zero at the absolute zero temperature. Since entropy is a measure of disorder, it can be interpreted at at absolute zero. A perfectly crystalline solid is a perfect order of its constituent particles. ठीक है? So this law deals with perfectly crystalline solid at absolute zero. Wherein at that point, जब ये perfectly मतलब इसका जो structure है, that is in perfect order. And if you have to calculate the absolute entropy of this substance at any other temperature T apart from zero, please use this formula. Sorry, this is wrong formula. The correct formula is this. Derivation is not in our scope and all that. Multiply by log of T. ये log to the base 10 है क्योंकि 2.303 लगा दिया हमने. So if you're, for example, again, if you're calculating natural log of 2, you can rewrite it as 2.303 into log of 2 to the base 10. Limitation of this law. Okay. So what are the limitations? I doubt very much तुम्हारे स्कूल में करवाया हो सकता है करवाया एनसीईआरटी में होगा तो करवाया होगा. Okay. Glassy solids even at 0 Kelvin. So not all the solids exhibits zero entropy perfectly in order. Glassy solids even at 0 Kelvin has entropy greater than 0. 2. ग्लासी सॉलिड्स क्या होते हैं? होते होंगे कुछ यार ग्लास वाले solids having mixtures of isotopes. If you have solids which are created with the help of isotopes, do not have zero entropy at 0 Kelvin. So entropy of solid chlorine entropy of solid chlorine, because chlorine is also made up of actually isotope 35.5 and I think 36.5 some percent. 99 is 35.5 is not 0 at 0 Kelvin. And crystals of cobalt, N2O, NO, H2O do not have, water तो चलो पता है, have perfect order at 0 Kelvin, and therefore their entropy is also non-zero. So entropy for even these glassy solid, we will have to find out what are glassy solids. I'm not that great a chemist, you know that. So I won't be able to tell you what's a glassy solid. Glassy solid examples are glass is an example of solid. ये आंसर है. बहुत अच्छे, क्या आंसर. Rubbish. ठीक है, I सुने don't तो know what करने is a क्या. होते होंगे कुछ यार. I don't know what are glassy solids made up of glass probably. Okay, and they are solid. ग्लासी. But moot point is this deals with crystalline solids. The crystalline solids are expected to have zero entropy at absolute zero. So this is meant for some ideal type of solid. And if not, the temperature is not zero for that perfectly crystalline solid. Use this formula to find the entropy of that solid at temperature T. So CP is its heat capacity at constant pressure.
प्रेशर सॉलिड एज ms थीटा, पहले भी हम यू हैव यूज्ड दिस समवेयर. ठीक है. ओके. एनी असाइनमेंट यू गॉट? नो नो, मैंने मैडम को पूछा नहीं मैंने. अच्छा, मिलना चाहिए था यार. बाय नाउ वुड हैव गिवन अस अ प्रीवियस ईयर पेपर एनीथिंग. हाँ अच्छा, तो मैं चेक करता हूँ, मैं आपको भेज ओके. दूंगा अगर मिलती है तो. डेल्टा एच न्यूमेरिकल. डेल्टा एच गिब्स के ऊपर डेल्टा एच इज गिवन टू बी -40 kJ and delta S is given to be -200 joule per Kelvin per mole. Sorry. What can you interpret about this statement? So this is a numerical. Delta हम्म. H in the numerical is given to be -40 kilojoules and delta S is given. First choice to you is the reaction is spontaneous, tenuous at all temperatures. Second choice that you have is it is non-spontaneous at all temperatures. Third is it is spontaneous for T less than -73 degrees. Fourth, it is spontaneous for T greater than -73 degrees. Question numerical. MCQ rather. Solve this. Obviously spontaneity decide करनी है तो delta ये G is टू going to be हंड्रेड part जूल of है your. ना, 200 जूल. That is correct. अच्छा ठीक. स्पॉन्टेनिटी. 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, है ना? Yes, हाँ kilo means that only. ठीक है. तो इसके अंदर मैं इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा. Delta G निकालना है यार, and you have to show whether delta G is positive or negative. That is हमें one. ऑप्शंस दे रखे हैं ना कि हमें स्पॉन्टेनिटी का ऑप्शंस है. Yes. But solve तो करना फिर भी पड़ेगा टेम्परेचर के लिए. हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं कर ही लूंगा. ठीक है. इनइक्वालिटी रिवर्स्ड. माइनस साइन उधर चला जाएगा ना. हम्म. ठीक है. तो ये शुड माइनस बी. 200 केल्विन. ठीक है, तो +273 कर लो. हाँ जी. सॉरी, ये केल्विन में आया आंसर. हाँ, ये हाँ जूल पर केल्विन. केल्विन है. तो आंसर इज इन डिग्रीज. हम्म. So you have to convert this Kelvin into degrees, right? So if केल्विन. you have zero, you add 0 degree is same as 273 Kelvin. So if you have 478 Kelvin, how will you convert it? 473 माइनस 273. G. So convert this into degree. नहीं रुक जाओ, केल्विन टू सेल्सियस. Hmm. 273 Kelvin is 0 degree. So 0 Kelvin will be equal to
इतना है ये, वैसे कितना आ रहा है, 400 है ना, ये 200 है। हाँ, -200 आ रहा है, ग्रेटर देन -200 केल्विन। -473 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। डिग्री नहीं होता है। 200 केल्विन इज सेम एज 273। नहीं, नो नो, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आ रहा है, शायद ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से। नहीं, 273 से 73 आ जाएगा। नहीं नहीं सर, 200 केल्विन है ना ये तो। हाँ तो बट हमें कन्वर्ट इसको इन। केल्विन में सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मैंने इसको हाँ सेल्सियस करना में चाहिए ना। करा, हाँ। तो -473 आ रहा है। माइनस कैसे? फोर सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस हाउ? सर, क्योंकि अगर उसको केल्विन तक, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या कहते हैं, -273 सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये मतलब मेन हो द कॉन्सेप्ट यू हैव यूज्ड टू सॉल्व दिस, दिखा नहीं कहीं पे कोई कुछ लिखा हुआ है हेल्टर स्केल्टर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या यूज करा है? मतलब डेल्टा जी इक्वल टू दिस लेस देन, डेल्टा व्हाट इज जी रिटन? शैल बी So लेस your देन, concept is wrong, okay? This is wrong because व्हाई, I told you this is in equilibrium. At equilibrium, delta G is zero. ये नहीं बोला आपने, ये लिखा नहीं है इक्विलिब्रियम में। यार न्यूमेरिकल में ये जो फॉर्मेशन हो रही है, हाँ, this is an equilibrium. It's a equilibrium reaction. अच्छा, okay. It's an equilibrium. First off, you use that. Find delta G. Put delta G equal to zero, and then calculate T. T कितना आता है फिर? And what did you take delta S as? 200 जूल्स। -200 है। हाँ हाँ, -200 ही तो लिए। एक मिनट, so you have taken अच्छा रुक जाइए, डेल्टा प्लस हो एच। जाना हाँ, चाहिए। ये भी गलत है। ये भी गलत है। हाँ, अब आ रहा है 73। हाँ तो बोलो ना यार कि मतलब बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही। तुम बोल रहे हो कि रेडॉक्स रिएक्शन करा दो, तुम्हारे 5 नंबर का तो गिब्स आएगा ये, वही नहीं होगा फिर। हाथ सधा होना चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। कितनी जल्दी में चलो, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट। पांच पांच नंबर का आएगा एंथैल्पी, और ये वाला 5 मार्क्स। अच्छा। और ये एक करा हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, लॉग टेबल वाला। हम्म, और एक हमने ये वाले करे एंट्रोपी वाले, मतलब अगर ये गलत हो गए तो 5 नंबर गए। ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर मतलब स्वाहा है। अच्छा। बिल्कुल है, क्योंकि मतलब दे विल, इसी से आता है। एंट्रोपी इज द मोस्ट, गिब्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोनों क्वेश्चन गिब्स के अगर आएंगे, एक ये आएगा ऐसे वाला, एक आएगा ये वाला, ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। ठीक। इसलिए मैं एम्फसाइजिंग एंड नॉट रशिंग थ्रू कि भागो भागो भागो। ओके। ओके। वेरी गुड। अब बताओ जी। सो कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज involved in conversion of 1 mole of liquid water at 373 Kelvin to vapor वेपर। at the same temperature. Obviously, change of at the same temperature. So, latent heat of vaporization is given in the question. (2.257 kJ/gram). करो जी एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट फेस चेंज की वजह से। सो दिस अ फेस चेंज, रिमेंबर द latent heat of vaporization is known to you. So now you need to recall in your mind फेस चेंज में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते थे, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज क्या होता है इसके अंदर,
सेम एज वेपराइजेशन। टेम्परेचर भी मालूम है, निकालना है डेल्टा एस सिर्फ, तो क्यू बाई टी। ठीक। हाँ जी। क्यू बाई टी यस सर। आंसर। बट ये फटाफट रिकॉल, फेज चेंज में क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसलिए थ्योरी जो है दोबारा पढ़नी पड़ेगी। एक एक लाइन करी हुई है हमने इसकी, वन ईच एंड एवरी लाइन। ठीक है। ओके। वो क्वेश्चन में डाउट रहा अभी भी, जिसमें आंसर 1000 किलो जूल वर्सेस +1000 आ रहा था, ठीक। सराउंडिंग और सिस्टम वाला। ठीक है, वो आई रीड इट, लेट मी स्टडी इफ वी कैन। ओके, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So you are given entropies of x2, y2 and xy3, and these, so standard entrop दे रखी है, और इसकी है 60, इसकी हाँ है 40, इसकी है 50। जी। रिएक्शन दिया हुआ है ½ x2 combines with 3/2 y2, giving you in equilibrium xy3. Delta H, the enthalpy change of the reaction, is given to be -30 kilojoule per mole. So individual standard entropies are known. Standard entropies are these. This is the overall reaction. Obviously, formation का concept लगेगा. What is the, at what temperature will this reaction विल बी स्पॉन्टेनियस। be at equilibrium? अच्छा। Delta G equal to 0. बट पहले सारी डेल्टा एस भी तो निकालना पड़ेगा ना इनसे। डेल्टा एस टोटल आ जाएगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स, हाँ जी। कोफिशिएंट लगाना है आगे, सब पता होता है पेपर के, लेकिन लेकिन एग्जाम लायक तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि रिवीजन और सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। सर हो गया जी। ये एक्स टू और वाई थ्री बना रहे हैं ना कंपाउंड। ½ x2 and 3/2 y2, yes, 3/2 ठीक है। reaction is given। अच्छा अच्छा। x/3। जितने भी स्कूल के पेपर मैंने देखे सब में यही आया। अच्छा। गिब्स के दोनों क्वेश्चन यही आए, और एंट्रोपी के भी ऐसे ही क्वेश्चन आए, नॉन स्टैंडर्ड।
डायरेक्ट ये कोई भी नहीं ये आया पॉजिटिव फॉर्मूला। में है ना सब, 60 40 और 50। यस, दैट इज करेक्ट। 92। -40 आ रही है डेल्टा एस। सही है, सही निकाला। नाउ इट्स इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द टेम्परेचर। ये जूल्स पे था ना या किलो जूल्स पे था? क्या? एंट्रोपी। यूनिट्स। हाँ। जूल। जूल। बहुत बढ़िया। बहुत दुआ दोगे मेरे को जब पेपर कर रहे होगे कि देखे हुए थे क्वेश्चन। ये 3 जूल है या 3 पॉइंट कुछ है? कहाँ पे? 3 किलो जूल है ना ये? हाँ, डेल्टा एच कह रहे हो ना? हाँ। 30, सॉरी, 30 30 30। अच्छा, 3 पॉइंट लग रहा है। नहीं, 30 30 किलो जूल है। ठीक। उफ, सही है। बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो। गुड है। 30,000 होगा। हाँ। तो 3 लाख कैसे बन गया 30,000 का? तीन 30 लाख किलो थोड़ी जूल। ना। कितने जीरो है ये? 4 ही तो है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये ओ, जीरो है ही नहीं। भाई पूरा अंडा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। 750। हाँ, सेवन 7.5। फिफ्टी 1050 केल्विन। जी। जेई मेंस का क्वेश्चन था ये। सही बताओ। सही में? सही करा है, और करा भी सही है। प्लीज ये सही में। कंसंट्रेट एंड डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। मेरी असाइनमेंट आ रही है तुम्हारे पास, बस ठीक है। मिल उसको जाएगी खत्म कर आपको। लेना। वो एक मिल ही बार जाएगी। में जस्ट डू इन 2 3 स्ट्रेचेस एंड फिनिश इट ऑफ। मिल जाएगी। एंड आइडेंटिफाई विच एरियाज आर नॉट क्लियर इन योर माइंड, वी विल रीडिस्कस। इस हम्म। बार देखते हैं कैन यू ब्रेक दिस 100% बैरियर और नॉट, पूरे नंबर लाने वाला। उसके लिए लेकिन यार मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा।